फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम कर रहे हैं क्लास 5 का चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का लेक्चर नंबर 8, जिसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसकी प्रीवियस वीडियो मींस लेक्चर नंबर 7 में हमने आपसे डिस्कस किया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्चुअली होता क्या है और इससे हम क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। और इसके टू वेज होते हैं निकालने के, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकेंड है डिवीजन मेथड। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालेंगे। और यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड से, जैसे आपको फैक्टर ट्री मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, डिवीजन मेथड, तीनों मेथड से एक एक क्वेश्चन जरूर कराएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड ही। और इसमें एंड में हम आपको देंगे होमवर्क क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आप कमेंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज video now. So let's start with our first question. Question says that we need to find at the HCF using prime factorization method. और prime factorization method में हमारा जो first question है दिया हुआ वो क्या है, 24 और 16 के हमें क्या निकालने हैं, HCF। आप वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इसको ट्राई कीजिए, फिर हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सो आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टर ट्री मेथड से। सो द नंबर वाज गिवन टू अस दैट वाज 24 and 16. Now for number 24, everyone knows that the factors will be coming out to be 1 multiplied 24, 12 multiplied by 2, 8 into 3 or 4 into 6. So we are writing here 4 and 6. Everyone knows that for doing the factor tree method we need to break down the composite number until we reach the prime numbers. So 4 and 6 are our composite numbers. Factors of 4 will be coming out to be 2 and 2. We had reached out to the prime number, that is 2 and 2, because a prime number is having only two factors, number 1 and the number itself. And factor of 6 will be 2 and 3. So at last you can write the factors of 24 will be coming out to be 2, 2, 2 and 3. Okay, let's do for number 16. Factors of 16 will be coming out to be 4 and 4. And factors of 4 will be coming out to be 2 and 2. So we will be writing 4. The factors of 4 has come out to be 2, 2, 2, 2. Factors of 16 will be 2, 2, 2 and 2. So at last we can write down the common factors. Let us see which common factors are coming here. Common factors that are coming here is 2, again 2, again 2. So common factors are here 2, 2, 2. So the highest common factor that is coming out of 24 and 16 is 2. I hope it is clear to you by how we are solving using prime by factor tree method. You have seen we started with factor solving. We had break composite numbers into prime numbers from where we have to reach. Now looking at here the same, you can see here the same method has been discussed, how we are finding the factors. Factors of 24 again we had written, and factors of 16 also. And final answer you can see here is coming out to be 2. So HCF of 24 and 16 is coming out to be 2. Okay, clear? Let's move to the second question. Now, second question says that, and this question we had given you in homework also. This question says that we need to find the HCF of 15,
25 and 75. So let's start solving this question. The numbers given to us was 15, 25 and 75. Now we are solving this question using multiplication method, but when we are looking at the question, you can see that factors of 15 will be coming out. 1 multiply 15, 3 and 5. For 25, you know that 1 multiply 25 and 5 multiply 5. And for 75, you will be getting 1 multiply 75, 5 multiply 15 and 3 multiply 25. So factors of 15 will be 1, 3, 5 and 15. The same we had written here. And for factors of 25 will be coming 1, 5 and 25. Now, many students will be again asking question, why we have not written this 5 numbers? Because in multiplication method, while we are writing factors, the numbers doesn't repeat. The factors doesn't repeat in multiplication method. So we will be writing 5 only one time. Factors of 75 will be coming out to be 1, 3, 5, 15, 25 and 75. By looking at the factors of both of all three numbers, the common factors are coming out to be 1 and 5. As you can see, the common factors are coming out to be 1 and 5. So the highest common factor for these three numbers are 5 only. Because the common factors are 1 and 5 only. So HF of this number will be 5. Clear? By multiplication method, we had solved this second question. Now carefully look at the solution. लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन हमें बोला गया 44 और 23 नंबर को हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है. तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा हमने यहाँ पे क्या यूज करा, फैक्टर ट्री मेथड. सेकेंड हमने क्या यूज किया, मल्टीप्लीकेशन मेथड. तब थर्ड में हम करेंगे डिविजन मेथड जो हमने पढ़ा है. तो हम 44 नंबर जो हमने लिया है, आपको पता है जब हम यहाँ पे डिविजन मेथड यूज कर रहे हैं, वी नीड टू यूज ओनली प्राइम नंबर्स बिकॉज we are using prime factorization method. Okay, so आपको पता है 4 क्या कहता है, इसमें 44 नंबर गिवन है. अब ऐसा कोई प्राइम नंबर सोचिए जिसको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए. सो मेरे दिमाग में तो दो नंबर्स आ रहे हैं. अगर आपके दिमाग में नंबर 11 आ रहा है या फिर नंबर 2 आ रहा है, सो यू आर करेक्ट. बिकॉज अगर 2 को आप 44 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा क्वेश्चन 22 और रिमाइंडर क्या मिलेगा 0. सो लेट्स स्टार्ट. 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 44 से, वी विल बी गेटिंग क्वेश्चन एज 22 एंड द रिमाइंडर एज 0. दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप डन. अब 22 नंबर हमारा नेक्स्ट स्टेप में आ चुका है. 22 को हमें प्राइम नंबर सोचना है कि इसे डिवाइड करें और क्या आ जाए 0. तो 22 नंबर है, सबके इजीली दिमाग में आ रहा हो क्या है 2. सो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसके आएगा यहाँ पे 11. हाँ, फिर आप क्या करेंगे 11 को डिवाइड करेंगे क्योंकि 11 भी क्या है हमारा प्राइम नंबर. सो देखिए डिवाइड कर करके डिवीजन मेथड से सबको पता है हमें इसको नंबर को फैक्टराइज करना होता है. कॉम्पोजिट नंबर्स को फैक्टराइज कर करके हमें डिवीजन मेथड में 1 तक पहुंचना है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम 1 तक पहुंच गए हैं. सो आप क्या लिख सकते हैं, 44 के क्या फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, 2, 2 एंड 11. ओके, अब आप ये देखिए 23 का. अब नंबर 23 आपको अगर गिवन है, 23 को आप पता है यहाँ पे क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, 1 नहीं होगा या फिर 23 होगा. तो इसको अगर हम क्या करते हैं, ये 23 नंबर ऑलरेडी हमारे एक प्राइम नंबर है, तो इसके आपको पता है इसके दो फैक्टर्स निकलेंगे 23 के. हाँ, दैट इज 1 एंड 23 itself. 23 के ऑलरेडी हमारा एक प्राइम नंबर है, तो इसका क्या आंसर हमें मिलेगा. हाँ, सबको पता है 23 हमारा क्या है प्राइम नंबर. हाँ, तो इसके अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर्स हमारे आ ही नहीं रहे हैं. 44 में क्या आ रहा है,
हाँ, लेट मी चेंज द कलर। 44 के क्या फैक्टर्स आ रहे हैं? 2, 2 और 11। 23 के क्या आ रहे हैं? 1 और 23। यहाँ पे कोई कॉमन ही नहीं आ रहा, तो मतलब कि इस क्वेश्चन का कोई HCF होएगा ही नहीं। इसका HCF इसलिए नहीं होगा क्योंकि देयर आर नो कॉमन फैक्टर्स। हमारे पास यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर्स है ही नहीं, तो HCF कैसे निकलेगा? तो मतलब कि ये क्वेश्चन गलत है। तो ये भी टीचर्स आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करते हैं कि आपको टॉपिक कितना क्लियर है। तो आप ये मत समझिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका HCF होगा। अगर कोई टीचर आपकी इंटेलिजेंस चेक करना चाहते हैं, आपके कंसेप्ट चेक करना चाहते हैं, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी क्लास टेस्ट में दे सकते हैं। बट इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम्स में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम्स में तो टीचर आपको चेक करना पाते हैं कि आपको HCF का कंसेप्ट आता है, फैक्टर्स का कंसेप्ट आता है, डिफरेंट मेथड यूज करने आते हैं या नहीं आते। सो दैट इज द पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो let's move to the homework questions. Now in homework you need to do these three questions, that is 15 and 30, 90 and 105, 27, 54, 36. इसके सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, तीनों मेथड से आप हर एक क्वेश्चंस को आप तीनों मेथड से ट्राई कीजिए। इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको पिछले को क्वेश्चन दिक्कत हुई है तो वीडियो को आप रिमाइंड करके जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।